Waiting for some more students to join. Good morning, ma'am. So quadratic equations कैसी होती हैं जिसमें x की power 2 होती है? How? Let's see. We'll be solving those kind of equations. I showed you formulas in last class. Do you remember? Sum of roots, product of roots, formulas, and how to find out the equation from sum and product of roots. Both the ways. So have you tried any questions? मैम सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट है ना ये तो? Yes, yes. We have done 1 and 2 units. One was arithmetic and geometric progression and other complex numbers. So today we will be doing this quadratic equations. Have you tried questions? Have you started solving yourself? Only 2 students have switched on their video. Rest of the videos are off. Now 3, 4, 5, 6, 7. Good, very good. Because I'm talking to all of you, that's why I need your videos. I will feel that I'm not talking to anyone. You just don't come on the video. Yes, lots of students now. Very good. Thank you so much for switching on video. Okay, now should I start presenting? Or do you have anything to ask from last classes? Ma'am, summarize the formula in short form, please. Yes, I'm telling again. I'm just about to present my page. Okay, let's start. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so in last class, I told you about quadratic equations and how to solve them. This is your quadratic equation, standard quadratic equation, जिसमें x की power 2 होती है. Okay. A, B, C are the constants. They are real numbers which are not equal to 0. A is not equal to 0. A 0 नहीं होगा तभी तो x square इसकी ये quadratic equation बनेगी. अगर a 0 हो गया फिर तो linear equation में भी x plus c रह जाएगा, है ना? So how to solve it? How to solve the quadratic equation? We first find out the determinant. What is discriminant? Sorry, discriminant is b square minus 4ac. b square minus 4ac. Last time we saw कि b square minus 4ac आपका नॉन जीरो होगा तो आपकी आएगी यूनिक सॉल्यूशन आएगी. किया था ना हमने लास्ट में? बिल्कुल. Yes, ma'am. Okay, so if this is our quadratic equation, तो quadratic equation के रूट्स कैसे निकालते हैं ये उसका फॉर्मूला है. एक रूट आपका पॉजिटिव होता है, बीच में प्लस आता है और एक रूट में नेगेटिव आता है, ये माइनस. ठीक है. और अंडर रूट ऑफ बी हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a. ओके विद यू? This is a formula. This is first formula.
for solving a quadratic equation. This is second formula for finding the roots of quadratic equation. Okay. अब रूट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? रूट्स का आपस में ये रिलेशनशिप होता है कि -b/a आपका मिडिल टर्म होती है और c/a आपकी लास्ट टर्म होती है. ओके, सो ये तो डेरिवेशन है जो हमें नहीं करनी है. मैंने आपको ये 3 कंडीशंस बताई थी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर. If the discriminant is 0, that means the roots are equal. If the discriminant is greater than 0, that means roots are distinct and unique. आपको 2 यूनिक रूट्स मिलेंगे. और अगर लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे. कॉम्प्लेक्स रूट्स डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे. ठीक है, ये तीनों केसेस के अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसमें ये सब अप्लाई होगा. तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, तीनों फॉर्मूलास. Okay. Should I move ahead? Yes, ma'am. So alpha plus beta is the sum of roots. Alpha and beta are 2 different roots where alpha plus beta आपका आता है -b/a. ये आता है. इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, आप सीधा इसको एज अ फॉर्मूला नोट कीजिए कि alpha plus beta are the roots of equation of quadratic equation and this is equal to -b/a. And alpha beta means the product of roots is equal to b/a. Okay. Oh, sorry, c/a. This is c. Okay. So आपकी quadratic equation है ax² plus bx plus c. तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c/a है और जो सम ऑफ रूट्स है वो -b/a है. अब आप वापस से अगर आपको प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स दे रखा है सपोज ये चीज गिवन है और आपको इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? x², उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. यानी कि x² माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b/a x प्लस c/a. तो इसके आगे क्या आएगा? a आपका एलसीएम अगर आपने ले लिया तो x² यहाँ आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c. आपको वापस से इक्वेशन मिल जाएगी ना? When you insert the values of these roots in this formula कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इस फॉर्मूला में डालते ही you get the equation again. Is this understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. इसमें किसी को कुछ पूछना है? Let's move ahead. Let's see more questions on this. ये आपका फॉर्मूला गिवन है जो मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी. x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. यस नजीम? x इसका माइनस वाला फॉर्मूला क्या था? ये रहा ना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. इंटू x है? हाँ, इंटू x है यहाँ पे. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ ठीक है, आपको समझ आ गया ना? लोअर योर हैंड एंड म्यूट योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू सॉल्व दीज एग्जांपल्स. अगर अल्फा बीटा आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा. तो ये कैसे करेंगे? सीधा एलसीएम ले लिया इसका. हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a. तो a कैंसिल हो गया, -b/c रह गया. ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा.
if this is our quadratic equation. Okay, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 5, ओके, प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आप 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा क्या बनेगा, 1, ये वाला माइनस बी बाय सी आ रहा है आंसर, तो यानी कि b क्या है 3 है, तो -3 अपॉन सी यानी कि 5 ये आ जाएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है -b/c। अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप की होती तो आपका आंसर ये आता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा करके। तो इससे क्या होगा, आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट सेपरेट सेपरेट मिल जाएंगे। इसमें हमें सेपरेट नहीं मिल रहा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कुछ भी सेपरेट नहीं है, ना तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है यहाँ पे, ना अल्फा बीटा दिख रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होना जरूरी है, नहीं होगा तो हम उसको किसी तरह से फॉर्म कर लेंगे, सो दैट हम b माइनस बी बाय ए और c बाय ए लगा सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें। ओके, सो इसमें आपने परफेक्ट रूट्स बना लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि -b अपॉन ए होल स्क्वायर -2 c बाय ए। वी गॉट दिस वैल्यू। सिमिलरली ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पे अलग तरीके से लिख देती हूँ, सो दैट बुक में तो स्ट्रेट पे वैल्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3b स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, क्योंकि इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मुझे यहाँ पर दिखेगा, तो इसमें क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब का। अब मेरे पास वैल्यूज क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, सिर्फ यही वैल्यूज है ना, बाकी तो मुझे मैनिपुलेट करके निकालनी होंगी। तो इसमें कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यहीं पर छोड़ देंगे, a प्लस बी होल क्यूब आगे उसको उधर ले जाएंगे प्लस कर देंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे और प्लस कर देंगे। दैट इज हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्यूब। ओके, हेलो, Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से अब आपको अल्फा 6 प्लस बीटा 6 दिया हुआ ये। अब अल्फा 6 क्या होता है, अल्फा स्क्वायर का क्यूब, अल्फा स्क्वायर का क्यूब, और बीटा 6 क्या होता है, बीटा स्क्वायर का क्यूब। ओके, सो इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे इसमें हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, इसमें हम लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला, बीटा क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर है सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला। सो उसमें भी सेम तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। मैम हाँ जी, हमें फोर्थ वाले में जब a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, हम उसको स्क्वायर, मैम मतलब a प्लस b का होल क्यूब कैसे हो गया, वो समझ में नहीं मैं आया आपको मेरे को। मैं आपको ये फॉर्मूला समझा रही थी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, ए और बी की जगह पे अल्फा और बीटा है, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ, एक मिनट।
मैं आपको ये बता रही थी कि ए और बी किस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें ए बी की जगह पे मैंने अल्फा बीटा लगा दिया, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होगा? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब? दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -3 अल्फा स्क्वायर बीटा -3 बीटा स्क्वायर अल्फा। ओके ओके। सो अब मुझे क्या But- चाहिए, मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। ये मेरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इस 3 को भी इधर ले जाऊंगी और इस वाले 3 को भी मैं इधर इस साइड पे ले जाऊंगी। क्यों ले जाऊंगी? क्योंकि फिर मुझे इजी हो जाएगा वैल्यूज निकालना। लेट्स सी, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब प्लस 3 बाहर निकाल दिया, अल्फा बीटा बाहर निकाल दिया, अब मेरा आ गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे को सेम, मुझे यही फॉर्म चाहिए थी, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तभी मेरे पास वैल्यू निकल पाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब तो क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, हो गया। अब यहाँ इस स्टेप से अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा पे माइनस बी बाई ए लगाना है, अल्फा बीटा पे आपको सी बाई ए लगाना है। ओके ओके मैम। अब क्लियर है ना? इसको नोट डाउन कहीं कर लो सो दैट। अब ये क्या है? अल्फा 6 और बीटा 6 है। अल्फा 6 बीटा 6 भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लगा दूंगी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 6 6 मिल जाएगा, यहाँ पे 6 6 मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, हर जगह अल्फा अल्फा और बीटा के ऊपर स्क्वायर। तो वो सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस अल्फा अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर है और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर। ओके, in the similar way this question is done 1 upon alpha cube plus 1 upon beta cube। आपने लिया इसका एलसीएम, उसको अल्फा ये बीटा है, सॉरी ये प्रिंट हुआ है, दिस इज बीटा क्यूब। तो वही करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे वापस से वही चीज लगाई हुई है जो अभी हमने ऊपर की है न्यूमरेटर में। और अल्फा बीटा तो नीचे हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी जगह पे तो स्ट्रेट अवे सी अपॉन ए लग जाएगा, और जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे माइनस बी बाई ए लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बी बाई ए लग जाएगा। ओके हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No. ओके फिर ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स में, इसमें देखो क्या किया हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये किया था ना हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है ना? यस मैम। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला इसका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है बस। अल्फा माइनस बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको प्लस बना देंगे। इसको कैसे प्लस बना देंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, खोल के देखो इसको, -2 अल्फा बीटा है, इसको +2 अल्फा बीटा कर देंगे, और एक बार और माइनस अल्फा 2 अल्फा बीटा, प्लस माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। अब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हमें इसमें मिल गया,
क्योंकि ये टर्म्स आ गई और एक ये टर्म हमने इकट्ठी कर ली और इसको हमने होल स्क्वायर करके लिख दिया और साथ में लिख दिया -4 अल्फा बीटा। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, जिसमें हम स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये मैनिपुलेशन किया है। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में और -4 अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख दिया। कैसे? +-2 अल्फा बीटा करके। ओके, ओके मैम। इसमें कुछ पूछना है किसी को? यस योगेश। मैम अभी जो आपने फॉर्मूला ओपन किया, इसमें 4 अल्फा बीटा कैसे आ सकता है? -2 अल्फा बीटा प्लस 2 देखो, अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, कैंसिल तो हो रहे हैं। मैंने ऐड करा है, मैंने ना इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दिया। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये होता है। यस यस मैम। योगेश। अब यस। उसके आगे मैंने एक +2 अल्फा बीटा और एक -2 अल्फा बीटा लगा दिया, प्लस माइनस कर दिया। हाँ। तो अब क्या हुआ कि जो प्लस वाला था वो मैंने इसके साथ मिलाकर होल स्क्वायर बना दिया। अच्छा मैम, इसके साथ मिला के। इसके साथ अब मेरे पास वैल्यूज किसकी है? मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। मेरे पास अल्फा माइनस बीटा तो है ही नहीं। यस मैम। उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? उसको मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कैसे लेकर आऊंगी बताओ? इसी तरीके से लाऊंगी कि मैं एक बार +2 अल्फा बीटा कर दूं, एक बार -2 अल्फा बीटा कर दूं कि इसके ऊपर फर्क ना पड़े। फिर उसके बाद मैं प्लस वाला इसके साथ मर्ज करके मैंने होल स्क्वायर बना दिया और बचा क्या? -4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा। अब मेरे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है। मैं इसको -b/a और उसको c/a पुट कर सकती हूँ डायरेक्टली। हाँ मैम, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आप अपने आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ सॉल्व करना है, सिंपल। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, पर ऊपर जितने भी कैलकुलेशंस में मैनिपुलेशन थी वो मैंने आपको सब बता दिया है। इसमें कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसमें जो अलग फॉर्मूला लग रहा है वो एक क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला लग रहा है, ए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। और अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है? ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। ये इस फॉर्मूला को यहाँ पे मैंने इजी करके लिखा था, तो इसको इस फॉर्म में लाकर सॉल्व करी थी इक्वेशन। ठीक है, ये आप खुद से आप एक बार ही सॉल्व करोगे फिर आपको आ जाएगा पक्का। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान सा है, आपको हर इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा सबके दे रखे हैं अल्फा बीटा। आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द सम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, विच यू कैन डू इजिली। आई थिंक सम और प्रोडक्ट ही निकालना है। एक बार ही ऐड कर दिया और एक बार ही आपने वो कर दिया मल्टीप्लाई दो रूट्स को। तो इसमें तो कुछ वो नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और ऐड करना है, नथिंग डिफरेंट। लेट्स डू स्मॉल क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, डिफरेंट है सारे के सारे। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व देम। आपको आ भी जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। इसमें आपको सिर्फ एनालाइज करना है, इक्वेशन को ध्यान से देखना है और रूट्स निकालने हैं। ओके, यस। टू रूट्स आपको इस इक्वेशन के दिए हुए हैं, R1 एंड R2। R1 लिखा हुआ, R1 एंड R2 आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट कि आपस में जो रूट्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब रूट्स के बीच में एक रिलेशनशिप आपको दे रखा है, आपस में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k। ओके, सो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या होगा? 12/1, c/1 होता है ना, c/a। सो R1 R2 इज इक्वल टू 12 एंड R1 प्लस R2 क्या है? -k। ओके, हेलो, ये तो समझ आ गया ना? Yes, ma'am. सम ऑफ प्रोडक्ट इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 12।
अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है, R1 माइनस R2 1 दे रखा है, तो इसमें तो कोई R1 प्लस R2 भी नहीं है, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से और उसके बाद प्लस माइनस 2 R1 R2 करने से मुझे ये रिलेशनशिप मिल जाएगा जैसे ऊपर मिला था। ओके, डिड यू गेट दिस? Yes, ma'am. ओके, तो R1 प्लस R2 क्या है, माइनस के है, R1 R2 क्या है, 12 है, 12 है, तो इसकी वैल्यूज मैंने इक्वल टू 1 पुट करके के की वैल्यू निकाल ली। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन कंसिडर, 2 नंबर का। इसी तरीके से ये भी है, इसी सेम तरीके से ये भी है, द k इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, k कोई रूट है इस इक्वेशन का, वेयर दिस इज डबल द अदर, मतलब एक रूट दूसरे का डबल है। थर्ड वाला देखते हैं, सपोज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा 2 रूट्स है इक्वेशन के। थर्ड पार्ट में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सॉरी, मैं फोर्थ पार्ट देख रही थी, ये तो स्ट्रेट पार्ट है। So let's see fourth, k is one of the roots of this equation and double the other. ये वाला देखो, k कोई रूट है इस इक्वेशन का, अगर k इस इक्वेशन का रूट है तो k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि x की जगह पे अगर मैं k लगा दूंगी तो मेरे पास कोई मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी, इक्वल टू 0 ही होगी। ठीक है, तो इसमें पूरी इक्वेशन को ओपन अप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई है और उसके 2 रूट्स को कंसिडर किया गया है, अल्फा और 2 अल्फा, बिकॉज वन रूट इज डबल द अदर, लिखा हुआ है, एक रूट दूसरे का डबल है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 2k प्लस 5 अपॉन k, ये होगा ना, माइनस माइनस तो हट जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कि 3 अल्फा आपका आया 2k प्लस 5 अपॉन k, ये आया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ जी, मैम एक बार दोबारा समझा दो मैम, ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ वाला मैं रिपीट कर रही हूँ। फोर्थ में आपको इक्वेशन कैसी दी हुई है, ऐसी दी हुई है k इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 7, ये दिया हुआ है। आपने x माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, आपने x माइनस 1 को ओपन कर दिया, तो क्या आया, k एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 2 kx, ये आया इक्वल टू 5x माइनस 7। क्लियर है? यस मैम। अब आपने एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, एक्स को एक साथ कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ मैम, हाँ अब बन गई ना, बन हाँ, गई ना, वही यहाँ पे बनाई हुई है, वो ये है। अब आपकी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आपके पास एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है, एक्स का भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट भी अलग दिख रहा है हमें, और एक रूट दूसरे का डबल है, ये हमें बताया हुआ है क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन में बताया हुआ है हमने यहाँ तक वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ओके मैम। ओके, सो अब आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई, आपका बी क्या है यहाँ पे, 2k प्लस 5 अपॉन ए इज के। ओके बेटा, ओके मैम। so next one is product of roots. What is product of roots? 2 alpha square, 2 alpha square है ना, इक्वल टू c अपॉन ए, c आपका क्या है, k प्लस 7 अपॉन k, ये रहा। इसमें अब ये क्लियर है? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. We listen. अब आपके पास Yes, ma'am. यहाँ से यहाँ पे yes. आपको अल्फा मिल रहा है स्ट्रेट अवे, अल्फा की वैल्यू दिख रही है, अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 5 अपॉन 3k।
ये रहा ना अल्फा की वैल्यू, इस अल्फा की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया, तो अब आपके पास के की फॉर्म, अब आप के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के की फॉर्म में सॉल्व करके। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के की फॉर्म में मिल गई ये वाली। यस मैम। ये जब आपने मैम इसको वो सॉल्व करा मैम 23 वो के, एक मिनट 23 के मिली, ये वाली इक्वेशन मिली। ओके, अब आप सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, फैक्टर्स ब्रेक करके Yes, ma'am. लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो 50 क्या होता है, 25 2 जा 50 होता है। तो मैं 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। दो फैक्टर्स आ गए, एक में के की वैल्यू 2 आ गई, एक में -25 आ गई। यही मुझे चाहिए था, मुझे तो के की वैल्यू चाहिए थी। यस विकास। मैम हमने जहाँ पे 2k + 5/3k का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 9k² आएगा ना? यस मैम। हाँ 9k² आएगा। मैम पर वहाँ पे 9k ही लिख रखा है। तो एक के और एक के कैंसिल भी तो हो गया ना। ओ ओके मैम। एक ये स्क्वायर वाला के है और एक ये सिंगल वाला के है। ठीक है बेटा। ओके। आगे आगे कुछ पूछना है इसमें? नो ये मैम। सब अच्छा, ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस यस। अब Yes, आपको ma'am. जो प्रैक्टिस करनी है ना, फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं, आपको पता है, आपको कांस्टेंट भी आपको सॉल्व करना आ गया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना आ गया, आपको समझ आ गई कि रूट्स कैसे लिखते हैं, क्यूबिक में कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये जो मैनिपुलेशंस है ना, क्वेश्चन से जो चीजें आपको गिवन होती हैं, पहले आप टॉप पे पहले वो लिख लिया करो कि जो गिवन है आपको, उससे आधा काम आपका हो जाता है, 50% काम यहीं पर हो जाता है। उसके बाद सिर्फ के की वैल्यू निकालनी रह गई, और वो मैनिपुलेशन करके कैसे निकालनी है, दैट यू हैव डन, दैट यू हैव सीन हियर। ओके, हमें के निकालना था, अल्फा बीटा गिवन था, तो हमने कांस्टेंट को दोनों तरफ से इकट्ठा करके के को के की टर्म्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर दिया। हमारे पास के की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है कि जो भी गिवन कंडीशन होती है उसको पहले लिख लो और अननोन को अलग करके देख लो कि आपसे पूछा क्या गया है और गिवन क्या है। ये दो चीजें लिखते ही आपका आधा काम हो जाएगा। ओके, बाकी के दो पार्ट्स तो इजी है, P + Q P × Q, ये डायरेक्ट है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये डायरेक्ट है। ओके, सो अब ये देखो 7th वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब 7th वाला पार्ट, इसमें देखो क्या है। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर, इस स्क्वायर ऑफ अदर का मतलब एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। एक तो अल्फा है और दूसरा अल्फा स्क्वायर है, यही रूट हुए हमारे। और प्रूव करो कि ये एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये एक्सप्रेशन आपको फॉर्म कर, प्रूव कर। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, सो अब 7th में आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/a, प्रोडक्ट रूट ऑफ रूट्स क्यूब अल्फा क्यूब होगा, अल्फा क्यूब आपका c/a। ये चीज तो क्लियर हो गई ना, -b/a और अल्फा क्यूब आपका c/a निकल कर आ। तो क्यूबिंग बोथ द साइड्स, अब हमने क्यूबिंग क्यों करी दोनों साइड्स की, क्यों करी? क्योंकि हमारे पास अल्फा क्यूब गिवन है, अल्फा स्क्वायर हमें अलग नहीं दिख रहा, अल्फा हमें अलग नहीं दिख रहा, अल्फा क्यूब, इसलिए हमने इस साइड में अल्फा क्यूब बना दिया और अल्फा 6 मिल जाएगा और अल्फा क्यूब मिल जाएगा, तो हम ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर पाएंगे, इसलिए बनाया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और अल्फा तो इकट्ठा करके दे रखा है इसमें। अब इसमें हमारे पास इकट्ठा करके अगर क्यूब, हम दोनों साइड्स को क्यूब करते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है होल क्यूब का, अभी हमने ऊपर क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 6 प्लस 2 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बी a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर है, ये करा था ना फॉर्मूला। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, रीजन लिखा हुआ है, दिस इज अ रीजन गिवन हियर। ये फॉर्मूला भी गिवन है आपको बुक के अंदर ही।
ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्मूला है ये। ये हमने किया था पहले, स्कूल में भी किया हुआ है। तो दिस इज अलजेब्राइक फॉर्मूला विच इज गिवन टू अस। ठीक है, तो अब अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा क्यूब। अब अल्फा प्लस अल्फा क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। ठीक है, हल्की सी यहाँ पे मिस्टेक है। तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 6, अब आपके पास अल्फा क्यूब क्या है, सी बाय ए को पुट कर दिया, अल्फा क्यूब यहाँ पे पुट कर दिया। अल्फा 6 क्या है, अल्फा क्यूब का स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस 3 अल्फा क्यूब, 3 अल्फा क्यूब हमें दे रखा है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये माइनस बी बाय ए है, पुट कर दिया। तो हम उस फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आ गए जहां पर हम हर चीज को पुट कर पाए, हर एक्सप्रेशन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ओके, अब ये देखो, राइट साइड में आपके पास ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना है और इस एक्सप्रेशन को ये प्रूव करना है कि ये निकल कर आए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, कार्तिकेय, प्रशांत, अली, अहमद, दीपक कुमार, यजत गुप्ता, निगर, भुवन, इंद्रजीत, तरुणा, अश्वित, राजू कुमार, सुरुचि, टीना, अमन कुमार सिंह, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं पूछना? नो मैम। ओके, एग्जाम्पल 4 में, एग्जाम्पल 3 में वी वर गिवन सम कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में था ये सब। एग्जाम्पल 4 में नंबर्स में सब कुछ दिया हुआ है, और भी इजी। कैन यू ट्राई एग्जाम्पल 4 ऑन योर ओन? How many students can do on their own? Raise your hand. How many hands raised? 3 only. Only 3. 5, 6, 7. Depending on the previous example we did, we can solve the values in the form of values. अब इसमें 20, 30, 40 ऐसे दे रखा है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्या हम ये अपने आप कर सकते हैं? इसमें माइनस बी बाई ए नहीं होगा, इसमें बी और ए आपको ऑलरेडी नंबर्स की फॉर्म में गिवन है। 13, वेरी गुड। Very good. 16. Okay. So you all are going to try doing example 4 on your own. This I will discuss in next class. If something is not clear with you और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। आप ये कंसिडर करो कि आपका ये होमवर्क है। अब तक हमने जितना भी किया है वो इसमें भी वही चीज अप्लाई हो रही है, सेम अप्लाई हो रही है। Okay, so try doing example 4 on your own. I'm starting with example 5. Okay. और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ऊपर वाले से भी ज्यादा आसान है, ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी ज्यादा इजी है। तो आप ये इसी बहाने आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आपको आएगा, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। So let's do 5th example. I'm doing 5th one. ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है इसमें क्वेश्चंस जो हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस 5th one. ओके, चलो फर्स्ट वाला अभी करते हैं।
आप लोगों के साथ सॉल्व करो फटाफट। आपको अल्फा बीटा बताया हुआ है, दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 2x² - 3x - 5 = 0। ठीक है, तो अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ओके, हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है कि जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आना चाहिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, यही होना चाहिए। ओके, सो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है इस इक्वेशन से, -3/2, यानी कि माइनस ऑफ -3 यानी कि 3/2 हो गया। अल्फा बीटा क्या हो गया, -5/2 यानी कि c/a। इज दिस क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें बनानी है उसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स होने चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकल कर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल कर आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, -2 अल्फा बीटा लिखा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपने 3/2 पुट कर दिया, अल्फा बीटा की जगह पे -5/2 पुट कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 29/4। ये हमें मिल गए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मिल गए कौन सी इक्वेशन के, जिसमें जो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 25/4 निकल कर आया। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैं ऊपर हमने फॉर्मूला किया था, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। तो ये हमारी नई इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, नो मैम। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, अल्फा बीटा 1/2 है। करना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये और ये हो। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ, क्या निकल कर आएगा, सम ऑफ रूट्स। नई इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, हमारे पास अगर रूट्स गिवन है तो हम उससे न्यू इक्वेशन बना सकते हैं। ऊपर फॉर्मूला मैम। बताया था मैंने, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जगह पर लिखकर वी कैन फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वेश्चन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रहे हैं, और ऐसी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप गिवन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, वो तो हमने स्ट्रेट अवे इक्वेशन देखकर लिख दिया, -b/a और c/a। उसके बाद हमने नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए। तो ये होने चाहिए, उसके लिए तो हमें इसका सम देखना होगा पहले। इसका जो सम होगा वो ये होगा 5/2, और प्रोडक्ट क्या होगा 1। तो हमारी नई इक्वेशन क्या निकल कर आएगी, x² - 5/2 इंटू x प्लस 1 = 0। ओके, यस मैम। यस मैम। फोर्थ वाला ट्राई कीजिए, देखिए मुझे बताइए अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो। थर्ड वाला तो इजी है।
मैम फोर्थ वाला। यस, ट्राई फोर्थ पार्ट. Any problem? No problem. Okay. Moving ahead, I'm starting with cubic and biquadratic equations. So let's see. जिसमें पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें x की पावर आपको 3 नजर आए, that is called a cubic equation where the highest exponent is 3. This is called a cubic equation. अब इस इक्वेशन के रूट्स भी 3 होंगे. अगर पहले x की पावर 2 थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके 2 रूट्स थे. इसमें x की पावर 3 है तो इसमें 3 रूट्स हैं. ओके, सो जितनी भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर होती है x की, उतने रूट्स होते हैं उस इक्वेशन के. क्लियर? ऐसे ही अगर आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट की पावर 4 है तो आपकी इक्वेशन कहलाएगी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी जो हाईएस्ट पावर 4 है तो यानी कि उसके 4 रूट्स होंगे. ओके, सो हमें फॉर्मूलाज रिमेंबर रखने हैं कि ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है और ये आपकी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. तो क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास 3 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा. पहले अल्फा बीटा था, अब तीसरा रूट भी आ गया. तो तीसरा रूट आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट विल बी इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स था अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस में होगा, माइनस बी बाई ये होगा इसका नया. और एक और इक्वेशन इसमें ये वाली इस टाइप की इंट्रोड्यूस हो जाएगी जिसमें दो रूट्स करके ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं, अपॉन इक्वल टू a1 अपॉन a0. a1 अपॉन a0 नहीं है ये, दिस इज a2 अपॉन a0. दिस इज नॉट a1. a1 तो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का. a1 कोफिशिएंट किसका है? एक्स स्क्वायर का है. और a2 है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे होगा a2 अपॉन a0. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलाज, दीज ऑल फॉर्मूलाज. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? लास्ट वाला जो a3 कांस्टेंट वाला होता है, a3 अपॉन a0, माइनस a3 अपॉन a0. अब एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार फिर माइनस. ये आप नोट कर रहे हो पैटर्न? मैं सेकंड वाली क्वेश्चन समझ नहीं आई मेरे को. सेकंड वाले में आपको
दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू a2 अपॉन a0। फर्स्ट वाला माइनस a1 अपॉन a0 था, सेकंड वाला पॉजिटिव था a2 अपॉन a0, थर्ड वाला फिर नेगेटिव हो गया माइनस a3 अपॉन a0। ये क्लियर है? दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज फॉर योर क्यूबिक इक्वेशन। ओके, ऐसे ही आपका जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की सबसे बड़ी पावर 4 है। 4 है होने से हमें दिख रहा है कि देयर आर 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 4 रूट्स क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो चारों का जब हम ऐड करेंगे, सम लेंगे, तो दैट विल बी माइनस a1 अपॉन a0, फिर से नेगेटिव। फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है? इस टाइप की प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, दो रूट्स को एक सब ऐड करा, फिर दो रूट्स को ऐड करा, उनको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस उनके प्रोडक्ट के साथ। ओके, हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. these are the sum of roots, Yes, ma'am. these are the sum and product of the roots। सम को भी हमने प्रोडक्ट में कर दिया इसको। और इसमें ये देखिए इसमें क्या है? अल्फा बीटा, इसमें सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अल्फा इंटू बीटा और आगे गामा प्लस डेल्टा कर दिया, प्लस गामा इंटू डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कर दिया। ये आपको पैटर्न याद रखना होगा तीनों में। और फिर चौथा क्या हुआ? सारे रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। वो तो होगा लास्ट वाला जो कांस्टेंट वाला a4 अपॉन फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट x4 का है a0, वो होगा। और बाकी माइनस प्लस, इसमें देखो ये दोनों माइनस माइनस है, सब माइनस है, पहले सब माइनस है और लास्ट में ये वाला प्लस है बस। यू हैव टू रिमेम्बर दिस एंड दैट फॉर्मूला। ठीक है? ओके, सो इसमें अल्फा, शुभम शर्मा, यस बोलो। यस, बोलो वकार खान। यस प्लीज बोलो सनी। मैम इस सेकंड वाले मैम यहाँ तो दे रखा है -a2/a0, लेकिन उसके साइड में मैम माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। मैम एग्जांपल 5 बताइए थोड़ा, नहीं हाँ, समझ में आया कुछ। ये मुझे भी मिस्टेक लग रही है इसमें। Yes, ma'am. अभी हम आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके, विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। ये फॉर्मूला गलत है शायद। यस मैम। यस, और कौन? और किसी को कुछ पूछना है? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, देन वी विल बी एबल टू नो कि हम कैसे कोफिशिएंट्स को लगा रहे हैं और कैसे उसके रूट्स को सॉल्व कर रहे हैं। और जब भी हमें रूट्स दिए हुए हैं, इतने सारे रूट्स दे रखे हैं, इसमें 4 हैं उसमें 3 हैं, तो 2 या 3 रूट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप जरूर जरूर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस तरीके से जो चारों रूट्स निकलना पॉसिबल नहीं होगा। जब भी हमें 4 रूट्स या 3 रूट्स निकालने होते हैं, वी आर ऑलवेज गिवन कि उसके बीच में कोई और रिलेशनशिप भी हो, जैसे एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, इस तरह से जैसे हमने पहले देखे थे रिलेशन। 2 रूट्स के बीच बीच में देख रहे थे, अब हमारे पास 4 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, तो उनके बीच में जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा गिवन, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। ओके,
का अब ये देखो, इसमें रिलेशनशिप हमें गिवन है कि रूट्स आर इन एपी, रूट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो हमें पता है कि देयर आर 3 रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है कि वो तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगा रूट्स के बीच में? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। So these are the 3 possibilities of this root. अब हमारे लिए फाइंड करना इजी है, ये x4 नहीं होगा, ये x स्क्वायर में। ओके, सो द सम ऑफ रूट्स वुड बी व्हाट? माइनस b अपॉन a, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 15 अपॉन 2, यानी कि 15/2। दिस विल बी द सम ऑफ रूट्स। और सम क्या निकल कर आएगा? b और b तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा, और 3 अल्फा इक्वल टू 15/2, जिसमें से हमारे पास अल्फा की वैल्यू 5/2 निकल कर आ जाएगी। एक रूट हमें मिल जाएगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि रूट्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है तो कैसा होता है? 3 नंबर्स कौन से होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में देखा था ना, ठीक है। तो अब हमारे पास अल्फा निकल कर आया 5/2। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है? ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, अल्फा बीटा अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये निकल कर आएगा। यहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ, मैं प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट अपॉन a0, 37/2, 37/2। अब इसको आपने पूरा ओपन अप कर दिया, आपके पास ये आ गया 3a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 37/2। ओके, अब आपके पास अल्फा की वैल्यू तो है ही 5/2, इसको पुट कर दो, बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, आ गई। जैसे ही हमें अल्फा और बीटा पता लगे तो हम इन तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये तीनों क्या है? रूट्स ऑफ इक्वेशन है। इससे हमारे 3 रूट्स आ जाएंगे। बीटा को +1/2 पुट करेंगे तो 3, एक सेट वो 3 निकलेगा, और अगर -1/2 पुट करेंगे तो दूसरा एक और सेट निकलेगा, यानी कि 6 रूट्स निकल कर आएंगे। मैम यस, यहाँ पे बीटा का वैल्यू माइनस में भी और प्लस में भी, नेगेटिव और क्यों? पॉजिटिव दोनों, मतलब एग्जाम में हम यस, लोग जब क्या भी लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? दोनों लेंगे, दोनों लेंगे। दोनों। बीटा स्क्वायर 1/4 है ना, तो बीटा मैम। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4, विच विल बी प्लस माइनस 1/2। तो ऐसे होता है ना। अच्छा, तो ओके इसमें मैम, थैंक यू मैम। 3 रूट्स निकल कर आएंगे। नेक्स्ट आपको रूट्स एचपी में दे रखे हैं। ये एक रेयर क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6th वाला। ओके, जो भी क्वेश्चन आएगा वो 6th वाला ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरे तरीके से आपको रिलेशनशिप गिवन होगा तीनों रूट्स के बीच में। तो अब ये एचपी है। एचपी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एचपी इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी 1 अल्फा माइनस बीटा 1 ये 1 करके आपका सम और प्रोडक्ट हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसमें जीपी वाला देखते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। Example 6 and 8 are important, and 7th one is in HP which is not in detail। तो ये वाला पहले देखते हैं। जीपी में रूट्स आपको गिवन है, यानी कि 3 रूट्स क्या निकल कर आएंगे? अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। इसमें अल्फा और आर दिया हुआ है।
R इज अ कॉमन रेशियो, हमें सबको पता है। और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a यानी कि 14/8, 14/8 यानी कि 7/4। ये तीनों इक्वेशंस लिख दी हमने जो हमें रूट्स में दे रखी थी। उससे हमारे पास ये और ये कैंसिल होकर हमारे पास 1/8 यानी कि ये 1/2 अल्फा निकल कर आ गया। जैसे ही ये अल्फा निकल कर आया तो बाकी के दो भी ऊपर के निकल आएंगे, क्योंकि एक वैल्यू हमें पता लग गई तो आर की वैल्यू भी निकल आएगी उसमें से। आर की वैल्यू क्या निकल कर आई, ये दो वैल्यूज निकल कर आई। अब हम आर को 1/2 भी ले सकते हैं और आर को 2 भी ले सकते हैं। तो जब हमने लिया तो हमें फिर से दो सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस मिले, दो सेट्स ऑफ रूट्स मिले। 2 सेट्स मिलेंगे ना, दो नंबर्स होंगे आर के। तो ओके, हेलो, यस मैम। let's see this question. This is a little different from above examples. इससे ऊपर किसी को कुछ भी पूछना है आप you can ask. Yes, I'm scrolling upside. If you want to ask anything, example 6, 7, 8 or related, something related to formulas, आप पूछ सकते हो. Ma'am, can you please recall example? What? Example 7 थोड़ा बताइएगा वापस। Okay. See, the roots are in HP. Harmonic progression. Harmonic progression कैसा होता है? Reciprocal of arithmetic progression होता है. वन, अब arithmetic progression में हम क्या ले रहे थे? अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. इसमें क्या लेंगे? 1/अल्फा माइनस बीटा, 1/अल्फा और 1/अल्फा प्लस बीटा लेंगे. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? ये तीनों का सम इक्वल टू 11/6. फिर ऑल्टरनेटिवली इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 3/6 यानी कि -3/6 यानी कि -1/2. ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी ना हमारे पास. हेलो, यस मैम। ये 3 इक्वेशन जब आ जाएंगी तो लास्ट वाली इक्वेशन से हमें अल्फा या बीटा के बीच में हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा. सो अल्फा की वैल्यू 1/2 निकल कर आई. जैसे ही हमें अल्फा की वैल्यू पता लगी हम बाकी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं. यस मैम। अगर मेरा अल्फा 1/2 है तो रूट, इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2. यस मैम। एक रूट तो मेरा 2 होगा. यस मैम। और अल्फा की वैल्यू जब मैंने इसमें पुट करी इक्वेशन में तो मेरे पास बीटा निकल कर आया ±5/2. यस मैम। पहले हम +5/2 अगर पुट करते हैं तो हमारे ये 3 रूट्स निकलते हैं, और अगर -5/2 पुट करते हैं तो दूसरे 3 और रूट्स निकलते हैं. तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, 6 रूट्स हो गए हमारे पास. जी मैम। नेक्स्ट वन इज 8th क्वेश्चन. 8th भी मैंने आपको बता दिया. लेट्स डू 9th वन. सॉल्व दिस इक्वेशन. ये हमें साफ पता लग रहा है. दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन. ये 3 है, ठीक है. दिस इज गिवन वेयर वन रूट एक्सीड्स अदर बाय 2, यानी कि एक रूट दूसरे का +2 है. एक रूट ये है, एक रूट ये है, यानी कि हमारे ये 3 रूट्स हैं. आपको कहीं पे भी डिफरेंट रूट्स नहीं दिखेंगे. हमेशा अल्फा और बीटा या किसी 2 रूट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप दिया होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है. तो उससे क्या होता है, आपके पास सिर्फ 3 वैल्यूज निकालने को होती है, ठीक है. एक रूट दूसरे से 2 टाइम्स बड़ा है, +2 है, तो यानी कि अब हमारे पास सिर्फ अल्फा बीटा है जो अननोन है. रिलेशनशिप तो दिया ही हुआ है. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 13/1, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली, सम ऑफ ऑल 3 रूट्स. इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ये हम क्यूबिक इक्वेशन वाली इक्वेशंस लिख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है. सम ऑफ रूट्स इज 13 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल्टरनेटिवली अल्फा इंटू अल्फा +2 प्लस अल्फा +2 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो ये 2 रूट्स को हमने ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करा
तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स विच इज 189 माइनस 189। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, ओके। यस मैम। इसमें यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम, ओके ऑल क्लियर। तो अब हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इक्वल टू 13 हो गया। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास बीटा की दो वैल्यूज, बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस 2 अल्फा, एक इक्वेशन निकल कर आई इसमें से ये रिलेशनशिप निकल कर आया। और इस वैल्यू ऑफ बीटा को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर। दो वैल्यूज निकल कर आई अल्फा की, -1/3 एंड 7। जब मैं अल्फा को -1/3 लूंगी और बीटा को लूंगी मैं, बीटा हमें गिवन है, इसको बीटा की वैल्यू निकालूंगी, बीटा की भी दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। एक बारी 35/3 निकल कर आई प्लस पुट करने से, और एक बारी -3 पुट कर निकल कर आई। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज से हमें पता लग रहा है हमें एक वैल्यू चूज करनी है। कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इक्वल टू 0 लेकर आएगी। तो 35/3 आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो ये हमारा रूट नहीं बनेगा। हमारे पास क्या है? बीटा की दूसरी वैल्यू है -3, जो हमारा रूट बनेगा। और उसकी मदद से हमने तीनों अपने रूट्स निकाल लिए, 7, 9 और -3, अल्फा, बीटा और एक अल्फा प्लस 2 यानी कि 9। क्योंकि एक रूट हमारा दूसरे का 2 से एक्सीड कर रहा था। इसमें किसी को कुछ पूछना है इस एग्जाम्पल में? दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। मैम बोलो। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैम 35/3 सेटिस्फाई सेटिस्फाई नहीं कर, हम कैसे पता लगा हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा? कैसे पता लगा? कोई भी इक्वेशन का जो रूट होता है, सपोज अगर मेरी इक्वेशन दे रखी है x² + 2x -3 आपको दे रखी है। अगर मैं कहूं कि 2 इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, तो रूट क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ना। 2 को यहाँ पे पुट करने से, यानी कि 0 आना चाहिए। जिस नंबर को पुट करने से, इस x की जगह पे पुट करने से हमारा इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है, यानी कि वो रूट होता है इक्वेशन का, क्योंकि रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। Yes, ma'am. root is the value of x. So 35/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो वो इसका रूट हमने रिजेक्ट कर दिया। ये रूट नहीं है, इससे हमें 0 नहीं मिल रहा। मतलब ये मैम बल्कि LHS और RHS ने इक्वल जो रूट करेगा वही रूट मतलब सेटिस्फाई करेगा। यस यस यस, थैंक यू मैम। ये चीज है जो ध्यान रखनी है जब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आती हैं। जी मैम। वैसे मोस्ट प्रोबब्ली तो स्ट्रेट अवे वैल्यूज आती हैं, आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबब्ली, बट इस क्वेश्चन में वैसे दे रखा है, तो इट्स गुड कि आपको पता लगे कि ये भी एक चीज है, इसमें चेक कर सकती है। हाँ जी सुधा, आप पूछ रहे थे कैसे, पूरा बताओ फिर से। ये मैं बता रही हूँ फिर से, ये क्यूबिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है, आपके पास दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, एक अल्फा है और एक अल्फा प्लस 2 है और एक बीटा है, यानी कि एक रूट दूसरे से 2 टाइम्स बड़ा है, +2 करते हैं, एक्सीड करता है 2 से, तो एक्सीड मतलब कि ज्यादा है। तो आपने 3 इक्वेशंस लिख दी जो हमें ऊपर दे रखी थी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते गए। ओके,
तो ये वाला तो Okay. माइनस बी बाय ए था, ये प्लस में था, ये फिर माइनस में था, तो ये माइनस में कैसे, ये इसके आगे तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस में हो गया। Okay. ओके, तो ये होने के बाद अब आपको रिलेशनशिप दे रखा है, अल्फा और अल्फा प्लस 2 दे रखा है इसमें, तो इसमें से आप बीटा आराम से निकाल सकते हो, बीटा को अल्फा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इस इक्वेशन से। क्लियर है? Yes, ma'am. तो लेकिन ये जो क्या लग रहा है, 11 कैसे आया, 2 इधर गया 11 बन गया, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा इधर चला गया, बीटा की वैल्यू ये आ गई, रिलेशनशिप आ गया। Yes. अब आपका जो बीटा है इसमें और इसमें आप पुट कर देंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी अल्फा की। अल्फा की 2 वैल्यूज निकल कर आई, -1/3 और 7। अगर मैं अल्फा को -1/3 पुट करती हूँ तो बीटा मेरा 35/3 निकल कर आता है, और अगर मैं अल्फा को 7 पुट करती हूँ तो मेरे पास बीटा -3 निकल कर आता है। ओके, Yes. तो ये मेरे पास 3 और 3 6 सेट्स निकलेंगे, रूट्स के 6 वैल्यूज निकल कर आएंगे, 2 सेट हो गए। एक में मेरे पास अल्फा 7 है, बीटा -3 है, और एक और रूट है अल्फा +2 यानी कि 9, ये रहा। ओके Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड सॉल्व अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल करते हैं। एक से ज्यादा एग्जांपल करने का इसमें फायदा नहीं है, इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, एंड सेकंड दैट विल कंज्यूम सो मच टाइम एंड नॉट वेरी दैट मच इम्पोर्टेंट आल्सो। सो ये आपको इसमें भी रिलेशनशिप दे रखा होगा दो रूट्स के बीच में, एक इसमें जैसे दो रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स, ऐसे करके दे रखा है, तो उससे हमारी इक्वेशन बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो ये अब जो फायदा है ना वो ये है कि आपको गिवन क्या है वो लिखने में फायदा है, पहले उसको रखोगे तो आपके पास 4 फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद आपने जो रूट्स के रिलेशनशिप्स हैं और उसको बस सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यूज निकालनी है उसके आगे। ये सिर्फ देखने में बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज दे आर सो, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इसमें आप लिख के देख रहे हो, इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, उसके आगे सब अपने आप हो जाएगा फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। ओके, so let's do one example of this. फिर उसके बाद 15th एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज मैम इम्पोर्टेंट। एग्जांपल 13 बताइए। एग्जाम्पल 13 कौन सा है, ये वाला? हाँ मैं बता रही हूँ, लेट मी सी। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये वाले पहले करते हैं क्वेश्चंस जो मैंने अभी टिक किए हैं, सो दैट वी कैन find out the roots of biquadratic equations also. First do this solutions. First वाला भी करते हैं। Yes. Let's see example 7. The product of two roots of is 2 means कोई भी दो प्रोडक्ट, दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 2 है इसमें, और 4 पावर में है तो यानी कि इसकी 4 रूट्स हैं। ये यहाँ तक तो सबको पता है ना कि 4 रूट्स हैं, x की पावर 4 है तो 4 रूट्स हैं, और 4 रूट्स में भी क्या है, दो रूट को मल्टीप्लाई करने, दो रूट्स का प्रोडक्ट 2 है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो क्या निकल कर आया, -b/8, माइनस माइनस प्लस हो गया 25/3। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? हेलो, Ma'am. यस। Yes, ma'am. सेकेंड इक्वेशन में क्या है,
product of sum of two roots and sum of product of two roots. 50/3 ये क्लियर है? ये हम डायरेक्टली ऊपर वाले फॉर्मूलाज पुट कर रहे हैं जो हमें गिवन थे रूट्स वाले. नेक्स्ट है प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट. तो ये हमारा 50/3, ये 50/3, ये भी 50/3 है. एक बार माइनस था, एक बार प्लस था, एक बार फिर माइनस था, तो ये प्लस हो गया. और अल्फा प्लस इंटू बीटा प्लस गामा यानी कि लास्ट वाला रूट क्या होगा? 12/3 विच इज 4. ये भी माइनस में होगा. क्यों? ये माइनस प्लस. अच्छा ये प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस में लिखा हुआ था, यहाँ गलत लिखा हुआ. माइनस नहीं है, प्लस है. नाउ व्हाट डू वी हैव? गामा इंटू डेल्टा इज 2. तो यानी कि इसमें दो रूट्स और हमें 2 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है. तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 2 हो गया. ये लिखा हुआ है अल्फा, दो रूट्स हमारे पास ये है, तो अल्फा बीटा मेरा क्या हो गया? 2 हो गया. यहां तक एवरीथिंग क्लियर? तो अब मेरे पास अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया और गामा इंटू डेल्टा भी 2 आ गया, जो कि हम इक्वेशन 3 में आराम से पुट इसको कर देंगे. इसको पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा इंटू 4. ये 4 डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, प्लस 2 4 हो जाएगा. 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये ना 38/3 आ जाएगा. बोलो योगेश. मैम अल्फा इंटू बीटा 2 कैसे आया? लास्ट वाले में देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. ऑल द 4 रूट्स आर मल्टीप्लाइड. दिस विल बी इक्वल टू 12/3 विच इज 4. ये तो क्लियर है. हाँ. और अल्फा इंटू बीटा आपको 2 दे रखा है. द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 2. आप कोई भी दो प्रोडक्ट पिक करके उसका प्रोडक्ट 2 लिख सकते हो ना. यस मैम. जब आपने उसको 2 लिख दिया तो बाकी के दो का प्रोडक्ट क्या हुआ? वो भी 2 हो गया. 4/2 2 हो गया. ओके मैम. तो नाउ अब जो 4 है ये इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 38/3 बन गया. ओके. अब हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा अलग अलग चाहिए. अब अलग अलग तो हमें दिख नहीं रहे यहाँ पे, अलग हो भी नहीं रहे. इज इट पॉसिबल हियर? Is it possible here to separate alpha, beta, gamma, delta, all 4? It is not possible. दिख रहा है आपको पॉसिबिलिटी? आपको गामा डेल्टा एक साथ दे रखा है, अल्फा बीटा एक साथ दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा भी एक साथ दे रखा है. तो आप अल्फा बीटा हमें आपको याद है मैंने मैट्रिक्स में बताया था आपको 4 इक्वेशंस चाहिए 4 अननोन्स के लिए. अब इधर अननोन्स कितने हैं? 4 हैं और आपके पास इक्वेशन सिर्फ 2 हैं, 3 है. तो क्या आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू अलग अलग कर सकते हो इसमें? इज इट पॉसिबल हियर? हेलो. नो मैम. So what we will do? There we will form another equation जिसमें रूट्स हो ये और ये. क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये आर की जगह पे गामा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गामा है. तो अब हमने दूसरी इक्वेशन क्यों फॉर्म करनी है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ ये दे रखा है और इनका सम भी दे रखा है, इसलिए हम नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा. अब उससे क्या फर्क पड़ेगा ये देखो, एक्स स्क्वायर, ये हमने नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसके ये 2 रूट्स हैं. अब ये 2 रूट्स जिस इक्वेशन के होंगे तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स हमें दिखेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय इक्वल टू 0. अब हमारे पास सबका सम क्या है?
इन सबका सम हमारे पास ऊपर दे रखा है 25/3 गिवन है 25/3 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, ये 38/3 जिसमें से हमारे पास इजीली x निकल कर आ जाएगा विच इज 2 और 19/3 दो निकल कर आ जाएंगे x की वैल्यूज। और जैसे ही ये x की वैल्यू निकल कर आएगी वैसे ही मैं अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यूज मुझे अलग अलग मिल जाएंगी, अलग अलग दो रूट्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। तो जैसे ही मेरे पास रूट्स की वैल्यू मिल जाएंगी तो उस केस में मेरे पास अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी मुझे पता है विच इज 2, तो मैंने फिर से x निकाला 1/3 और 6 निकल कर आया। और गामा प्लस डेल्टा में भी दो रूट्स और निकल कर आ गए, तो मेरे को चारों रूट्स मिल गए। ओके, एक हमने फिर से इससे इक्वेशन बनाई और इसकी इक्वेशन सेपरेट बनाई, तो मतलब हमने कितनी इक्वेशंस बनाई? हमने एक इक्वेशन, हमने 3 बार हमने इक्वेशन बनाई, तो हमें 3 अननोन्स की वैल्यूज मिल गई और एक आपस में रिलेशन में ऑलरेडी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाई क्वाड्रेटिक के अंदर। दो दो रूट्स को पिक करके उसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते गए और उसके एक्स निकालते गए, और जो एक्स है वही तो रूट्स है, वही तो वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की। ओके, ओके। नेक्स्ट इज 12th एग्जाम्पल। इसमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रूट टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा, ये गिवन है। फिर से रिलेशनशिप गिवन है आपको, तो आपने वही 4 इक्वेशंस लिख ली जो हमें बाई क्वाड्रेटिक के लिए लिखनी चाहिए थी। अब हमें इसमें से अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपका अब निकल कर आएगा 4, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? +-2 हो जाएगा, यहीं से पता लग रहा है। ओके, और इसमें भी इक्वेशन ये वाली भी छोटी हो जाएगी, होगी कि नहीं? ओके, हेलो, यस मैम। ये मैंने आपको बताया कि इक्वल था तो +-2 निकल कर आ गया, ये रहा +-2 निकल कर आ गया। तो इसमें से ये दोनों वैल्यूज आपने पिछली इक्वेशन में डाल दी, उसमें से वैल्यूज निकल कर आ गई। धीरे धीरे आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। इसमें क्या करेंगे आप? वापस से आपने ये वाला दो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा को लेके फिर से एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपके पास फिर से अल्फा डेल्टा आ गया जैसे पिछले एग्जांपल में आया था। ओके, तो अब ये बनेगा √(-1), ये बन रहा है ना √(-1), यानी कि आयोटा स्क्वायर हो गया। इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आता नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है, जिससे सॉल्व करना तो आ ही जाएगा आपको, कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो दिस इज अ वे की इक्वेशन बनानी है और वैल्यूज आपकी सारी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की, इसमें से अल्फा बीटा अलग अलग आ जाएगा। आपने अल्फा बीटा लेकर एक रूट बना दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा लेकर बना दी जिसमें से और दो वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेंगी इसमें बाय क्वाड्रेटिक के अंदर। हमेशा आपको रिलेशनशिप गिवन होगा, एक आपने रिलेशनशिप को यूज करना है, उसके बाद ऊपर की ये रूट्स की इक्वेशन में इसको पुट करना है और इसमें से जितनी वैल्यूज निकल सके निकाल लो, और उसके बाद आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग से बनाकर फिर आप रूट्स लेकर उसको निकाल सकते हो एक्स की वैल्यूज। रिलेशनशिप में जरूरी है यही ना मैम? वो गिवन होगा, ओके मैम। वो हमेशा गिवन होगा, वो थर्ड वो क्यूबिक इक्वेशन में भी गिवन है। ओके मैम। ओके, सो यस मैम। लेट्स सी नेक्स्ट, ये वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th वाला।
इसमें अल्फा बीटा गामा बता रहा है, ये इसके रूट्स हैं, तो इसकी वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, पी होगा, p/1 यानी कि p। वही हमने 3 इक्वेशंस लिख ली ना। अब इन तीनों की मदद से हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो क्लास में कितने बच्चों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा, 3 वेरिएबल्स को जब हम ऐड करके उसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 गामा 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, गामा अल्फा, ये होता है ना। दिस इज अ फॉर्मूला। ये हमें ये स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाना होगा इधर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको यहीं रखो, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, पी है, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 गामा बीटा प्लस माइनस 2 गामा अल्फा, ऐसे हो जाएगा। तो 2 बार निकाल दिया, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू ये पूरा, इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 2, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये क्यू है, दिस इज क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस 2q आपका आंसर आ गया। ये किस बच्चे को क्लियर नहीं है क्लास में, यू कैन रेज हैंड। यस आयुष। मैम ये -2 कैसे आया? ये -2, ये मैंने पूरा एक्सप्रेशन जो है मैं इधर ले गई लेफ्ट में, क्योंकि मुझे वैल्यू तो इसकी चाहिए ना, ये है ना, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। ओके मैम। तो उधर जाके वो माइनस हो गया, बाकी सारा एक्सप्रेशन मैंने अंदर ब्रैकेट्स में डाल दिया, जो हमारा मेरा सेकंड रिलेशनशिप था, इसको यूज करा, इसको यूज करा, तो इसकी वैल्यू क्यू है। ओके, यस मैम। ऐसे ही आपने नेक्स्ट वाला सॉल्व करा हुआ है, कैसे किया हुआ है इसको, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी पे ये वापस से फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो फॉर्मूला मैंने किस पे लगा दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर। ये क्या निकल कर आएगा, अल्फा प्लस ये निकल कर आएगा सबका स्क्वायर -2, जैसे ऊपर किया था बिल्कुल सेम वैसे किया है। अब मैंने दो दो वेरिएबल एक साथ ले लिए। ये किस बच्चे को क्लियर नहीं है, यू कैन रेज हैंड। मैम दोबारा बताना एक बार। सी, आपने पहले अल्फा बीटा गामा अलग अलग लिया था ना, ये तो समझ आ गया था। यस मैम। अब अल्फा बीटा गामा की जगह पे मैंने अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ले लिया होल स्क्वायर। तो ये खोलेंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस विल बी 2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं।
प्लस 2 दिस इंटू दिस, ये दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा अल्फा इंटू अल्फा बीटा विच विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये होगा। हाँ जी बेटा, यस मैम। ये होगा ना। तो अब इसमें से 2 बाहर निकाला आपने, अल्फा बीटा गामा को बाहर निकाला, अंदर क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये पूरा। ठीक है, इसको आप उधर ले गए माइनस करने के लिए। आपको ये पता है, आपको ये ऑलरेडी पता है, और आपको ये भी ऑलरेडी पता है। आपकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी पूरी। हमें यही तो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इज इट ओके? बोलो सुधा कुमारी। यस यस सुधा बोलो। मैम समझ में आ गया। आ गया ना, गुड। हैंड नीचे कर लो अपने। अब किस बच्चे ने पूछा था ये? आयुष ने पूछा था। यस No, मुरारी, समझ आया आपको? हाँ जी, मुरारी आपको समझ आया? One second. आशीष, प्रकृति, विशाल, गुरु प्रसाद यादव, शशांक विमन, गौरव त्यागी, ईशा खान, अभिनव सिंह, दीपांशु, गौरव। यस मैम। शशांक। यस समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करण, यजत, यस मैम, समझ आ गया। अगर Yes, ये ma'am. समझ, Ma'am, अगर आ ये गया, समझ आ गया ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अमरीन, प्राची शर्मा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसका माइक ऑन है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल 4। कितने बच्चों को समेशन का मतलब पता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो? मैम एडिशन। यस, यस मैम। मतलब the sum of all the expressions written inside summation, right? ये आपको जब Yes, ma'am. binomial theorem आएगा, you will be able to understand it more, how to express sum of series, sum of sequences, summation use होता है उसमें। I hope these two parts are clear. You can ask again in next time after practicing. You'll be able to find out. Okay, summation का क्या मतलब है? अब summation of alpha cube beta का मतलब है कि alpha cube beta. Yes. हेलो मैम। Yes, I'm listening. मैम यूनिट कौन सी चल रही है ये? हाँ जी। हेलो। Yes, I'm वॉइस आ रही है listening. मैम मेरी? 3 यूनिट चल रही है। हेलो मैम, यूनिट कौन Okay, सी चल रही next है? one यूनिट is. कौन पूछ मैम रहा है ये? पहले यूनिट पहले मैम सुन अपना तो लो नाम बात। बोलिए। मेरा नाम मुकुल सिंह है मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये क्लास कब आती कब चले जाते कोई पता ही नहीं चलता। इतनी क्लास छूट गई मेरी। अच्छा, अल्फा पहले क्यूब मैसेज नहीं बीटा आते, में जब पहले एक दो मैसेज आ गए, उसके अपना बाद माइक आया ऑफ नहीं। कीजिए, बाद में पूछना ये क्वेश्चन। सी अल्फा क्यूब बीटा
इज इक्वल टू, अब अल्फा क्यूब की जगह पे समेशन लगा हुआ है इसके साथ, तो क्या क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसको ऐसे लिखेंगे ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि समेशन है ना, समेशन मतलब सम, तो और गामा क्यूब ऐसे लिखते हैं इसको। और बीटा की जगह पे आपको आ जाएगा, बीटा की अल्फा क्यूब की जगह पे क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस गामा। क्यों, क्योंकि अल्फा क्यूब बीटा की अल्फा क्यूब बीटा तो है ही है, प्लस अल्फा क्यूब गामा, ठीक है। और इसमें बीटा क्यूब की जगह पे बीटा क्यूब के साथ क्या आएगा, गामा प्लस अल्फा। बुक में मिसप्रिंट हुआ है, ये नोट कर लीजिए प्लीज पेंसिल से या पेन से। तो ये होगा थर्ड वाला जो वेरिएबल होगा वो गामा क्यूब होगा, और फिर उसके साथ बाकी के दो वेरिएबल्स ऐड होंगे, दैट वुड बी अल्फा प्लस बीटा। प्लीज नोट डाउन व्हाट आई हैव रिटन। यस आई विल एक्सप्लेन यू। आयुष बोलो। समेशन समझ में नहीं आया, बाकी आ गया। रिलेशन क्या होता है, ये आपको सिर्फ समेशन, आपको यहाँ पे समेशन दिया हुआ है, ठीक है। समेशन यानी कि सम, यानी कि अल्फा क्यूब है पहले, उसके बाद आपका बीटा क्यूब है, उसके बाद आपका सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, और डेल्टा क्यूब है, इनका सम हमें करना है। और इसके साथ में बीटा है, बीटा का मतलब है कि यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा क्यूब के साथ, तो अल्फा क्यूब बीटा तो है ही है, प्लस अल्फा क्यूब गामा भी है, और बीटा क्यूब है तो बीटा क्यूब अल्फा अल्फा भी है, और बीटा क्यूब गामा भी है। मतलब बाकी के दो वेरिएबल्स, बाकी के दो कौन से हैं, बीटा छोड़कर अल्फा और गामा है इसके साथ। ऐसे ही गामा क्यूब है तो इसके साथ अल्फा है, और गामा क्यूब है तो इसके साथ बीटा है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि हमने ब्रैकेट में बाहर निकाल लिया अल्फा क्यूब बाहर निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अंदर रह गया। इसमें अल्फा बीटा क्यूब को बाहर निकाल दिया, अल्फा और गामा अंदर रह गया, और गामा क्यूब को बाहर निकाला तो अल्फा प्लस बीटा अंदर रह गया। ये समझ आ गया। यस मैम। ये समेशन है, समेशन यानी कि आपको वन बाय वन सारे वेरिएबल्स रूट्स के वैल्यूज लेने हैं वन बाय वन। तो अब मेरे पास इसमें से क्या निकल कर आया, इसमें से ये देखो, इसमें सारा मिसप्रिंट हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, और इसमें बाकी के दो वेरिएबल्स होते जाएंगे मल्टीप्लाई। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो अब हमारे पास दे क्या रखा है इसमें क्वेश्चन में, हमें कुछ कुछ वैल्यूज पता है अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो अल्फा प्लस, अब मेरे पास ये क्या आ रहा है, बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा क्या होगा, बीटा प्लस गामा होगा पी माइनस अल्फा, ये होगा पी माइनस अल्फा, ये होगा पी माइनस बीटा, और ये होगा पी माइनस गामा। ओके ओके। यस मैम। अगर आप इसके ब्रैकेट्स ओपन अप भी करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एक बीटा यहाँ पर है, एक बीटा यहाँ पर है, अल्फा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ऐसे ही आप क्यूब्स को इकट्ठा करके आप क्यूब की इक्वेशन इसको सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो हमने पहले किया था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल क्यूब करके इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर, उसको वैसे ही पुट करके बिल्कुल सेम तरीके से पुट कर कर आप यहाँ पे निकाल सकते। ओके हेलो। यस मैम। यस मैम। अब ये देखो एग्जाम्पल 17 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। ये कौन बोल रहा है? अभी किसी ने बोला था कुछ,
मैम आपकी आवाज रिपीट हो एको हो रहा था। यस, तो अब आपका ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो इसमें अल्फा स्क्वायर का समेशन यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है। तो इस इक्वेशन का वो क्या बनेगा फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस पी, पता है हमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल्टरनेटिवली हम करेंगे तो क्यू अपॉन वन, ये आपका माइनस आर अपॉन वन फिर से, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज एस अपॉन वन। ये तो क्लियर है ना सबको, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी ऊपर हमने किया था। यस मैम। तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर्स का हमने कैसे किया था इसको, बताओ। टेल मी, कैन यू रिपीट? स्क्वायर्स का हमने कैसे सॉल्व किया था। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यही मीनिंग हुआ ना। तो अल्फा स्क्वायर को कैसे निकाला हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है। अल्फा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, राइट। यस मैम। यस मैम। तो इसको इसकी वैल्यू को डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर समेशन ऑफ, ये मेरे पास ऑलरेडी क्यू है यहाँ पर, दिस इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज नॉट अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्यू ऑलरेडी गिवन है। अल्फा बीटा मेरे पास आता है माइनस आर अपॉन या फिर एस अपॉन अल्फा बीटा। तो इसको आप घुमा के इसमें पुट करके यू कैन सॉल्व इट। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, एस अपॉन डेल्टा, और डेल्टा कैसे आएगा, वो माइनस पी। तो उससे ये क्वेश्चन निकलेंगे। यस, यस, एनी क्वेश्चन। आप बेशक समेशन को हटा के इसको सॉल्व करके देखो, 4 टाइम्स इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक लेके उसके 4 उसके वैल्यूज लेकर, और उसके बाद इसमें पुट करो लास्ट, तभी समझ आएगा। इसको खोल दो, ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्यू, ऑलरेडी गिवन है। ये आता कैसे है, अल्फा, इन दोनों में से हम एक अल्फा बीटा गामा सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो मेरे पास ये इक्वेशंस आती चली जाएंगी। और जिसमें ये दे रखा है आपको P, ये दे रखा है आपको Q, और ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये Q है। गामा को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे एंड Q की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी द रिलेशनशिप। ओके, हेलो, यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कुछ पूछना है?
Yes, mostly the questions are from quadratic or cubic equations. So I'm giving you a formula here. मैम Yes. मैम इस चैप्टर से मोस्टली 5 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं ना? हाँ, इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, बट यस क्यूबिक इक्वेशंस और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसकी आप पूरी रखना प्रैक्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके मैम. 1 minute, I'm sharing with you one formula here, or I'm sending in the chat itself. मैम अटेंडेंस. Yes. मैम अटेंडेंस लिंक. 1 minute. Yes, 1 minute, just maintain some silence, please. I'm sending you some formulas. Yes, you can note it down. I'm sharing screen. Can you see this formula?
Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can see. Yes, ma'am. This is अल्फा बीटा नहीं है, इसमें a और b की फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल गिवन है. This is a cubic equation. Note it down, please. Have you noted? Yes, ma'am. See this. Can you see the roots and coefficients of quad? Okay, noted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने बच्चों ने नहीं किया, अभी कर रहे हैं? मैम मैं कर रहा हूँ. Okay, I'm displaying the Screenshot ले लो. मैम ये previous. क्वार्टिक्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा के क्या लिखा है इक्वल टू में? अब ये सिंबल आ रहा दिख नहीं रहा. ये वाला इसमें क्वार्टिक्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस नीचे बी बाय ए, सी बाय ए, डी बाय मैम ए, सबसे नीचे वाला यही वाला यही ई बाय ए, ई बाय ई बाय ए. ओके मैम. Noted. Okay, so next class we have on Tuesday. And then I will be starting with a new topic of differentiation and its applications. Okay, differentiation and integration carries most of the marks in your paper. And first question is basically on matrices only. So आप practice करते रहिए and differentiation integration. Ma'am, please करेंगे उसके display the बाद. timetable. Yes. यस करण मैं अभी शेयर कर दूंगी. करवाओगे inequalities. नहीं, पहले हम differentiation करेंगे. Okay. That is a bigger topic and most it carries most of the marks of your paper. Okay, ma'am. So small topics हम बाद में करेंगे. मैम जा सकते हैं, अटेंडेंस लिंक मिलेगा. हेलो मैम, जा सकते हैं, फिर अटेंडेंस लिंक मिलेगा. मैम लीव कर सकते हैं या फिर अटेंडेंस लगेगी? लीव कर सकते हैं. ओके. मैम अटेंडेंस नहीं लग रही. अटेंडेंस स्टार्टिंग नहीं लग गई थी जब आप ज्वाइन हुए. ओके मैम. मैम मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाया, फोन ऑफ था. सो ये आप लोगों की क्लास का शेड्यूल है. काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन